Good afternoon, one and all. Today is 3rd June 2021 and we will be taking Venn diagrams of set operations. Set operations के ऊपर Venn diagrams ले रहे हैं. So let's see what we are going to cover today. We'll see what are the universal set, Venn diagram किसको बोलते हैं, and how do you visualize Venn diagram with two sets. फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट देखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स देखेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स देखेंगे, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. देन वी डिटरमाइन द सेट्स involving set operations from the Venn diagram and understand the meaning of and or, and then use the formula of N A union B. Now let's begin with the Venn diagram. This is universal sets and Venn diagrams. So universal set is a general set that contains all elements under discussion. Universal set देखो, ये जो बाहर वाला ब्लू वाला पोर्शन है, ये रेक्टेंगल बॉक्स, और ये व्हाइट वाला, ये पूरा का पूरा जो है, दिस एंटायर बॉक्स इज अ यूनिवर्सल सेट. ये पूरा यूनिवर्सल सेट है. ठीक है, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट. और ए सेट जो है, ये व्हाइट कलर का जो गोला है वो ए सेट, और ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये बाहर का जो पोर्शन है वो डिनोट कर रहा है. ब्लू पोर्शन जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट है, व्हाइट पोर्शन ए है, और यू यूनिवर्सल सेट जो है ये दोनों को मिलाकर, ये दोनों का पूरा पोर्शन इज यूनिवर्सल सेट. So this John Venn in 1843 to 1923, he has created the Venn diagram and shows the visual relationship among the sets. So universal set is being represented as a rectangle and the subsets are being represented in the form of a circles. Oval circles के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो सर्कल है ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है. ये ए सर्कल जो है ये ए सेट रिप्रेजेंट कर रहा है. Now use the Venn diagram to determine each of the following sets. U जो है, U जो है, so this U is being representing the universal set. और A set के अंदर क्या हुआ है, ये this element and this element, triangle and a square. ठीक है. So the set of elements in U that are not in A, U में है पर A के अंदर नहीं है, वो elements. So use the Venn diagram to determine each of the following sets. वेन डायग्राम से हम क्या क्या चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं. यू यूनिवर्सल सेट. तो ये जो पूरा यू लिखा हुआ है, यू सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं. लेट्स सी द एलिमेंट्स व्हिच कम्स अंडर यू आर, ये यू के अंदर दिस स्क्वायर, ट्राइंगल, डॉलर, M5, टोटल 5 एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं. ए सेट के अंदर क्या क्या आ रहे हैं, स्क्वायर बॉक्स एंड ट्राइंगल. ए कॉम्प्लीमेंट मींस अदर देन दिस एरिया. ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बाहर का पोर्शन जो हमने यहाँ पर देखा था, ए कॉम्प्लीमेंट, ये ब्लू पोर्शन. सो द ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट विच कंटेन्स डॉलर, M एंड 5. तो ए कॉम्प्लीमेंट में डॉलर, M और 5 है. ए सेट में स्क्वायर ब्रैकेट और ट्राइंगल है, और यूनिवर्सल सेट में ये दोनों चीजें हैं, ए और ये ए कॉम्प्लीमेंट. ओके, सी हियर यूनिवर्सल सेट इज कंप्राइजिंग ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट, दिस स्क्वायर, this triangle, dollar, M5, and this A set consists of this triangle and this is being represented as a oval या फिर स्क्वायर भी बोल सकते हो जो है रिप्रेजेंट किया है. और ए और ये वाला जो ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट में डॉलर, M5 है. ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हो गया, और ये सेट अदर देन ए in the universal set. तो universal set minus a, that is a complement, this becomes a complement. ये क्या है, this is a complement. So a complement is equal to dollar, 5 and M. So these are the three things which can represent using the Venn diagram. Now let's represent the disjoint sets. Disjoint sets means that the two sets have no elements in common. So set A and set B. If I say set A and set B have no elements common, then it can be represented like this. Suppose set A consists of set of all even numbers. I'm just writing E word here. X such that X is a set of all even numbers. B is a set which is equal to X such that X is a set of all odd numbers. So how do you represent these two? We represent these two sets using this disjoint. So there is no element which is common in A and B. Then
equal sets means what? A is equal to B and then B is a subset of A and B, A is a subset of B and B is a subset of A, means these two sets are equal. मतलब A के अंदर जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स जो B के अंदर है. तो अगर सपोज A के अंदर 1 2 3 है और B के अंदर भी सेम एलिमेंट्स है, सपोज B is equal to 2 1 1 3, अगर एक से ज्यादा भी रिपीटेड है इसका मतलब है एक ही रिपीटेशन 2 बार है तो भी इसका मतलब क्या है 1 2 3 है. ऑर्डर भी चेंज हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सेट ए और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स कॉमन है, 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी 1 2 3 है. सो दैट मींस सेट ए कंसिस्ट ऑफ 1 2 and 3. Set B is also consisting of 1 2 and 3. So both the sets are having the common elements. So it can be represented like this, overlapping of A and B sets. Then the proper subsets. All elements of set A are elements of set B. All the elements of set A are the elements of set B. It means it is a proper subset. So how do I represent that? A elements is having all the elements present under the set B. So A is a subset of B and A is called as the proper subset. So we don't have to include equal to sign. I have to erase this. Proper subset हमने पढ़ चुके हैं. So A is a subset of B. All the elements of A belongs to B, but A is not equal to B. A equal to B के लिए हमने यहाँ पर ऐसे equal to का represent किया है. तो ये is equal to यहाँ पर और यहाँ पर है equal to. तो अगर ये दोनों condition match होती है तो equal to आता है. पर proper subset पे क्या होता है? A, all elements of A is in B and B should have some elements more than A. B के अंदर कुछ elements A से ज्यादा है. जैसे suppose A के अंदर 1 2 है तो B के अंदर 1 2 3 4 कुछ elements extra है. At least एक element extra है. So this is how do you represent it in the form of a Venn diagram. Okay. Now sets with some common elements. Some means at least one. The representing the sets must overlap. See this portion. ये जो portion दिख रहा है dark color का, dark blue. Common elements are in this range. So how do you represent it in the common elements? Say for example, 1 is a common element in both. A consists of 2 and 20. 1 2 20. B consists of 3 and 30. So if I write set A is equal to 1 2 and 20. Set B consists of 1 3 30. ठीक है. A consists of 1 2 20 and B consists of 1 3 30. So now what is common in both? 1 is common in both. So how do we represent 1 as common element? This intersection is being represented like this. ये intersection जो common elements है वो यहाँ पर ऐसे 1 represent किया हुआ है. Common elements, that is at least one element will be common in both. So that is represented in the Venn diagram like this. Now determining sets from a Venn diagram. Sets determine करना है. Use the Venn diagram to determine U. बताओ अब यहाँ पे. Give me the solution. Determine the U, universal set. Universal set में क्या क्या आएगा? जल्दी बताओ. Unmute yourself and tell me what are the elements which are there in universal set. A के अंदर क्या है? B के अंदर क्या है? A B C D E F G. A B C D F G are the elements in the universal set. A B C D E F G. Then what are the elements in set B? B के अंदर कौन कौन से elements दिखाई दे रहे हैं? Quickly. B के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है? D and E. Then the elements of the set of elements in A but not in B. A but not in B. The elements which are in A but not in B. B में नहीं होने चाहिए, सिर्फ A में ही होने चाहिए. A B C only.
डी नहीं आएगा क्योंकि डी जो है वो बी में है। द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन बी, द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन बी, बी में नहीं है, बी में नहीं है वो सारे एलिमेंट्स। ABC DFG, डी नहीं आएगा, ए बी सी ई एफ जी, ए बी सी ई एफ, ई भी नहीं आएगा, ए बी सी एफ जी। ये देखो ए बी सी और ये एफ और जी, ये बी के एलिमेंट्स डी और ई मिसिंग है, ये डी और ई को निकाल दिया, तो ए बी सी एफ जी, ए बी सी एफ जी। लास्ट, द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी, दोनों में क्या है कॉमन, द एलिमेंट्स विच आर बोथ इन ए एंड बी आर only one element, that is D. Okay. The complement of a set, complement of a set means जो अभी हमने बताया था, A जो सेट है उसके अलावा जो सेट दिया होता है यूनिवर्सल सेट में, मतलब यूनिवर्सल सेट में से A का निकाल दिया तो जो बचा हुआ है A कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A symbolized by A dash is the set of all elements in the universal set that are not in A. This idea can be expressed in set builder notation as follows. A complement is equal to x such that x is in universal set and x does not belongs to the x does not exist in A. So the shaded region represents the complement of A and this region lies outside the circle. Circle के बाहर में जो region lie करता है उसको complement बोलते हैं. Now tell me, finding the set's complement. U is the universal set given, A is this set, find A complement. Quickly answer this question. What is A complement? 1347. A complement है 1347. A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए सेट नहीं बोल रही, दिस इज ए सेट, यू हैव टू फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश ए बार। इसको अपन कैसे लिखते थे याद करो पिछली बार, वी राइट लाइक दिस ए डैश या फिर यू राइट ए बार, ऐसा लिखते थे, या फिर निगेशन ऑफ ए, इस तरह से लिखते थे, याद करो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए डैश। अभी मैंने बताया ए डैश कैसे निकालना है, सी हियर a dash is equal to x such that x exists in u and x does not exist in a. a को निकाल देना है, यूनिवर्सल सेट में से a के एलिमेंट्स को निकाल देना है। whatever the elements are there in a should be removed from the universal set. यूनिवर्सल सेट में से a के एलिमेंट्स को निकाल दो, तो what is the a dash? 2 5 6 8 9. 2 5 6 6 8 9. So A dash contains all the elements of the set U that are not in set A, because set A contains the elements 1 3 4 7. So these elements cannot be the members of set A dash. So A dash is equal to 2 5 6 8 9. See here, 2 5 6 8 9. A dash can be represented as A dash, A bar. Complement can be represented like this, negation of A. Now the intersection and the union of two sets. दो sets का intersection और union देखेंगे. The intersection of set A and set B is being represented by A intersection B. ये हम पढ़ चुके हैं, A intersection B is equal to x such that x exists in A and x exists in B. दोनों में होना चाहिए common, that is intersection. The elements which are common in both A and B are A intersection B. And whereas union, the set of all the elements of A is being written as all the elements of A as well as all the elements of B is being written as A union B. So the definition can be expressed in the set builder form as A union B is equal to x such that x exists in A or x exists in B. या तो A में या तो B में, दोनों में, और A में या फिर B में, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, A union B. For any set A intersection null is null, मतलब अगर A सेट है और उसके साथ में दूसरे सेट जो है null है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, नल होगा। अगर यूनियन कर रहे हैं ए यूनियन दूसरा सेट नल है, खाली है, तो यूनियन में क्या होगा, ए प्लस, और ये प्लस और माइनस जैसा ही है, देखो ना, कॉमन एलिमेंट्स, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन और यूनियन में दोनों को जोड़ के। नाउ फाइंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरसेक्शंस, व्हाट इज द वैल्यू हियर, जल्दी बताओ। और इसको वेन डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास में एक सेट दिया हुआ है और ये दूसरा सेट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स क्या है, 7 8 9 10 11, 7
8 9 10 कॉमन में 11 6 12 8 9 10 11 6 8 10 12 ये इस टाइप से सर्कल है। चलो बताओ मुझे व्हाट इज इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन क्या है? जल्दी बोलो भाई। ये 10 है, ये 8 है। 7 8 9 10 11 इंटरसेक्शन 6 8 10 12। डायग्राम भी देखो और मैंने इंटरसेक्शन बताया है आपको, हाउ डू यू कैलकुलेट। क्या आएगा इसका रिजल्ट? इंटरसेक्शन मींस 8 and 10. 8 and 10, that is common elements in both. सेकेंड डायग्राम, वेन डायग्राम कैसे निकालेंगे इसका? 1 3 1 3 5 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, and the second is 2 4 6 8. So what is intersection of these two sets? Intersection of these two sets. जल्दी बोलो, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? ये दोनों कौन से सेट कहलाते हैं? दोनों सेट कौन? Empty set. एम्प्टी। None. हाँ ये एम्प्टी आएगा, इसका नल आएगा रिजल्ट। और इनको क्या बोलेंगे? these two sets are called as disjoint sets. disjoint means what? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, disjoint sets. and last one 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 5। दोनों सेट्स में कॉमन क्या है? इस सेट में और इस सेट में क्या कॉमन है? What is common in these two? 1 3 5 7 9? Nothing. Nothing common. दोनों में कॉमन क्या है? Nothing. 5. So this will also give us disjoint sets. ये मतलब disjoint मतलब कुछ भी नहीं। Disjoint. हाँ ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, यूनियन ऑफ टू सेट्स। दोनों का यूनियन बताओ फटाफट। वेन डायग्राम, ये these topics we have already learned, हम वेन डायग्राम देख रहे हैं। दोनों का यूनियन बताओ। 7 8 10 7 8 9 9 11 11 6 6 12 दोनों का यूनियन बताओ। व्हाट इज द यूनियन? जल्दी बताओ दोनों का यूनियन। यूनियन विल बी ऑल द एलिमेंट्स। 7 9 11 7 8 नहीं आएगा। 9 11 8 नहीं आएगा। no ma'am. क्यों? अरे यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स, सारे Yes, ma'am. एलिमेंट्स सारे एक है। elements. 7 7 8 8 9 10 11 9 12 10 10 11 11 हाँ 6 12 12 6 भी आएगा। 6 7 8 9 10 11 12। अब इनका यूनियन बताओ जल्दी से। 1 3 5 5 7 9 7 9 2
4 6 8 6 8 इनका यूनियन बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 8 9 9 लास्ट वन ए यूनियन 5 ए सेट में 1 3 5 7 है 1 3 5 7 और दूसरा सेट एम्प्टी है तो क्या होगा यूनियन क्या होगा जल्दी बोलो बेटा। यूनियन मतलब दोनों को जोड़ेंगे 2 + 0 इज हाउ मच 1 3 1 1 3 5 7 9 3 5 7 9 7 5 7 9 9 आगे रिजल्ट see the result of the exercise. Now next, performing set operations. Always perform any operation inside parenthesis first. Union set is given, A is given, B is given. A union B complement. Who will give me the solution first? A union B का complement. पहले A union B निकालो फिर उसका complement निकालो. A union B क्या है? What is A union B? Venn diagram में how do you represent it? 1 2 3 4 टू कहाँ पर 5 है? ए 6 यूनियन बी में टू 7 नहीं है। अरे रुको, ए यूनियन बी में ए और बी का यूनियन लेना है पहले और फिर कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी में जो ए के सारे एलिमेंट्स हैं, बी के सारे एलिमेंट्स और जो रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ एक बार लिखना है। बोलो 1 3 7 8 9 1 3 7 8 9 10 1 3 7 8 9 10 1 3 7 8 9 10 हो गया। देन कॉम्प्लीमेंट Yes, ma'am. निकालना है। ये वाला सेट माइनस करना यूनियन में से, ये सेट माइनस करना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? यूनियन में से इस सेट को निकाल देना, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। निकालो कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट 2 निकालना है। 4 5 2 4 5 6 9 6 बस 6 okay ma'am 2 2 4 4 5 5 6 2 4 5 6 कॉम्प्लीमेंट आ गया। नाउ वेन डायग्राम। Yes, ma'am. इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया यू, ये मेरा ए सेट हो गया, ठीक है, और ये मेरा बी सेट हो गया। कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी है इन दोनों में, जैसे कि 3 7, जो 3 7 है यहाँ पर आएंगे 3 7 और यहाँ पर आएगा 1 और 9 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 8 और 10 आएगा। बचे हुए एलिमेंट्स क्या हो गए? वो बाहर आएंगे 2 4 5 6, ठीक है। तो ये जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है, ये वाला बाहर का पोर्शन है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी के अंदर जितने एलिमेंट्स है उसको हटा देना, बाकी बचे हुए क्या होगा? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट 2 4 5 6। नाउ ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स निकालना है। यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स निकालना है। क्विकली स्पीक आउट। यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स निकालना है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। गिव मी द सॉल्यूशन क्विकली। 2 4 5 2 4 4 5 5 6 6 हाँ, 8 10 2 4 5 6 8 10। Then B complement. B complement 1 2 4 5 6 5 6 9. 9 Okay.
अब दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मींस व्हाट? जोड़ना, एक इंटरसेक्शन लाइन में मींस, लाना। इंटरसेक्शन मींस व्हाट? दोनों में क्या चीज कॉमन है, बताओ। 2, 4, 5, 6. common. 4 4 5 5 6 6, ठीक है। ये हमारा हो गया ए सेट 1 3 7 9, this is set A, this is set B 3 7 8 10, and the complement of A का जो complement है that is outer portion of A, और B का जो complement है उसका outer portion का ये, और दोनों का intersection, मतलब जो चीज इनमें कॉमन नहीं है, तो हाउ डू यू रिप्रेजेंट इट? बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का जो सेट है, ए एलिमेंट्स जो है ये इसके बाहर के पोर्शन, ये बाहर का पोर्शन जो है ये वाला पूरा ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? बी के बाहर का पोर्शन हो गया, ये जो बाहर का पोर्शन है, ठीक है। तो ये दोनों के जो बाहर का पोर्शन है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए एंड ए का इंटरसेक्शन और बी का इंटरसेक्शन, ठीक है। ये देखो हमारा आंसर आ गया, दोनों में कॉमन 2 4 5 6। नाउ डिटरमाइन द सेट्स फ्रॉम द वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में से सेट्स बताना है। इसके अंदर हमारे पास में सेट ए में 1 2 है, सेट बी में 2 3 है, और यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 है, ओके। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एलिमेंट्स। सेट ए में ये 1 एंड 2 है, सेट बी में 2 3 है, और यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 है। नाउ ए यूनियन बी, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और बी और बोथ, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और बी और बोथ, तो यूनियन में क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 1 2 3, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी 1 2 3 हो गया, इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट ये 1 2 3 हो गया। इसके अलावा यूनिवर्सल सेट में क्या बचा? यूनिवर्सल सेट में यहाँ लिख लेती हूँ, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1 2 3 and 4, 1 2 3 4। So now A union B whole complement, A union B 1 2 3 है, उसका होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 2 3 निकाल दिया तो सिर्फ 4 बचा, सो वी लेफ्ट विद 4। A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दिस 2, ये देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2। A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये 2 जो है यूनिवर्सल सेट में से निकाल देना है, होल कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 में से निकाल देना, तो 1 3 4 1 3 4। देन A इंटरसेक्शन B, B कॉम्प्लीमेंट नहीं, A इंटरसेक्शन B, मतलब A का जो सेट है, A का सेट क्या है? A इज इक्वल टू 1 and 2, A के अंदर 1 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? A डैश बोलो जल्दी क्या होगा? A डैश इज इक्वल टू 3 4, 4. ठीक है। अभी अब हमें क्या निकालना है? A इंटरसेक्शन B, B इज इक्वल टू 2 and 3, so now what is common in both? 2. दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है, ये दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है क्या?
दोनों में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन इन बोथ ए इंटरसेक्शन बी? क्या कॉमन दिख रहा है इंटरसेक्शन बी में? देखो 3. इधर 3, ये 3, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दूंगा, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी यूनियन में से बी निकाल दिया, 2 और 3 निकाल दिया, तो बचा क्या? 1 और 4, 1, 4, ठीक है, 1, 4 है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या बचा? 1, 2, 3, 1 to 1 to 4. 4, 4 है ये, 4 है ये, 1 to 4, Yes, okay, ma'am. ठीक है। Sets and the precise use of everyday English language. So or refers to the union and refers to the intersection of the sets. This is one of the important formula. इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अपियर होते हो तो ये फॉर्मूला हमेशा, एक क्वेश्चन इसके ऊपर हमेशा ही पूछा जाता है। सेट थियरी के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है, एक या दो क्वेश्चन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आप पीओ के लेवल के, बैंकिंग के, लॉजिकल रीजनिंग जो पार्ट आता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द कार्डिनल नंबर ऑफ द यूनियन ऑफ टू फाइनाइट सेट्स n, the number of the elements in A or B. So A union B, that is total number of the elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. So हमने माइनस क्यों किया यहाँ पर? I'll just show you कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। ये हमारे पास में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, हमारे पास में A सेट है और एक सेट बी है, इसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। ए सेट में और बी सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? तो दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, ये जो पोर्शन है दैट इज कॉमन इन बोथ द एलिमेंट्स। सो दिस कॉमन पोर्शन शुड बी इंक्लूडेड वंस, एक ही बार इंक्लूड करना है, क्योंकि अगर मैं सेट ए बोलती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, अगर मैं इसको बोल रही हूँ तो इसमें क्या होगा? जो ये कॉमन पोर्शन है ये दो बार आएगा। कुछ एलिमेंट्स जो है ए में भी है, वो जो एलिमेंट है वो ए में भी बिलोंग करता है, वही एलिमेंट बी में भी बिलोंग करता है, तो वो एलिमेंट सिर्फ एक ही बार इंक्लूड होना चाहिए और एक निकाल देना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर से माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार निकाल दिया, क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट दो बार आ रहे हैं, एक की तरफ से एक बी की तरफ से, तो कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार इंक्लूड करना है इन काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको काउंट करने के लिए ए के सारे एलिमेंट्स को काउंट करना है, बी के सारे एलिमेंट्स को काउंट करना है, पर जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार काउंट करना है, तो एक बार जो है उसको निकाल देना, दैट इज बाय माइनस एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच इज कॉमन इन बोथ। दिस इज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला को आपको याद करना है। सो ए यूनियन बी is equal to A union B is equal to number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus A intersection B. Just see the question. Some of the results of the campus blood drive survey indicated that 490 students were willing to donate blood. कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विलिंग है ब्लड डोनेट करने के लिए? 490। 340 स्टूडेंट्स वर विलिंग टू हेल्प सर्व अ फ्री ब्रेकफास्ट टू ब्लड डोनर्स। 340 जो है वो ब्लड डोनर्स को फ्री ब्रेकफास्ट देना चाहते हैं। एंड 120 स्टूडेंट्स पर विलिंग टू डू बोथ। 120 जो है वो स्टूडेंट्स दोनों चीजें करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पर विलिंग टू डोनेट द ब्लड और सर्व द ब्रेकफास्ट? दिस इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू हैव टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कैसे निकालेंगे हम? सी हियर the blood donors and the breakfast servers। जो बीच वाला दो चीजें हैं यहाँ पे, एक ये ब्लड डोनेट करना है, पहला वाला जो है 490 स्टूडेंट्स। some of the results of the campus drive survey indicated that 490 students were willing to donate blood। 490 स्टूडेंट्स ब्लड डोनेट कर रहे हैं, 340 स्टूडेंट्स जो है वो दे सर्व अ फ्री ब्रेकफास्ट टू ब्लड डोनर्स। ये ब्रेकफास्ट भी सर्व कर रहे हैं, ये ब्रेकफास्ट पर सर्व कर रहे हैं, ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और 120 जो है वो दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये बीच वाला है दैट इज कॉमन, बोथ डोनर्स भी है ब्रेकफास्ट भी है, ब्लड डोनर्स बट नॉट ब्रेकफास्ट। एंड 3 डिनोट्स ब्रेकफास्ट सर्वर्स बट डू not donate the blood।
सो नीदर ब्लड डोनर्स नॉर ब्रेकफास्ट, ये जो 4 वाला रीजन है ये बाहर का रीजन है, जो ब्लड भी डोनेट नहीं कर रहे ना ही ब्रेकफास्ट डोनेट कर रहे हैं। तो हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर विलिंग टू डोनेट द ब्लड और सर्व द ब्रेकफास्ट, कितने स्टूडेंट्स जो है विलिंग है ब्लड डोनेट करने के लिए और ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए, या तो ब्लड या तो ब्रेकफास्ट या तो कॉमन, पर कॉमन होगा तो एक ही बार इंक्लूड करना है। सो number of the blood donors or the breakfast that we have to calculate, number of the blood donors, number of the students who is donating breakfast and the number of the students who are donating blood as well as donating the serving the breakfast। तो 120 ये दिया हुआ है, ये 490 दिया हुआ है, ये 340 दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस किया 830 आया, माइनस 120 किया तो 710। So 710 are the students who belongs to the number of the student, number of the person who are donating either blood or donating the breakfast, ये टोटल। तो बीच का जो नंबर है उसको एक बार ही इंक्लूड किया, एक बार निकाल दिया। ओके, नाउ टाइम आउट खत्म होने वाला है। समझ में आया ये फॉर्मूला, ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ये क्वेश्चन मैं आपको एक असाइनमेंट के लिए दे रही हूँ। क्वेश्चन समझ में आया, क्या पढ़ा है हमने, ये फॉर्मूला लर्न करना है, लर्न दिस फॉर्मूला। NA union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B। Would you like to ask anything? Session close कर दूंगा।